السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سے کریمان کی تین حالت میں ہوں گی۔ چلیں جی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ جی ہم پڑھ رہے تھے مرکب، دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں۔ پھر ہم نے مرکب کی دو ٹائپس پڑھی، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام کی فردر دو کیٹیگریز تھیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ الحمدللہ ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں مرکب ناقص۔ اس میں ہم مرکب توصیفی پڑھ چکے ہیں، مرکب اشاری، مرکب جاری اور مرکب اضافی ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی کیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ مرکب اضافی ہی کریں گے۔ جی ایسا مرکب جس میں بات نامکمل ہو وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ نیک لڑکا مرکب توحیدی کی ایگزامپل، یہ کتاب مرکب اشاری، گھر میں مرکب جاری، زید کا گھر مرکب اضافی کی مثالیں ہیں۔ جی سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا مرکب توصیفی، تو اس کے دو اجزاء ہیں، موصوف اور صفت۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا مرکب اشاری، جس کے دو اجزاء تھے، اس میں اشارہ اور مشار علیہ۔ اس کے بعد ہم نے مرکب جاری دیکھا تھا، جس کے دو اجزاء تھے، حرف جار اور اسم مجرور۔ اور پھر ہم نے مرکب اضافی دیکھا، جس کے پہلے اسم کو ہم نے کہا مضاف اور دوسرے اسم کو ہم نے کہا مضاف علیہ۔ ٹھیک ہے، تو مضاف کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جسے نسبت دی جائے، اور مضاف علیہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جس کی طرف نسبت دی جائے، یعنی کہ جو تعلق کا شو ہونا یا تعلق ظاہر کرنا یا ایک چیز کا دوسری کے ساتھ تعلق ہونا مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور مضاف جو ہے وہ اس کے اوپر کبھی بھی الف لام داخل نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوتی، اور مثنیٰ کے جو صیغے ہیں ان کے اوپر کبھی بھی مثنیٰ یعنی کہ آنی مرفوع ہونے کے لیے، اور اینا جو یینا جو ہے وہ ہوگا منصوب یا مجرور ہونے کے لیے۔ تو جب مثنیٰ اور جمع سالم کے صیغے آئیں گے مضاف کی جگہ پر، تو ان کے نون جو ہے وہ ڈراپ ہوئے ہوں گے، وہ نون ظاہر نہیں ہوں گے بلکہ محذوف ہوں گے، حذف ہوئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مضاف علیہ کیا ہے؟ مضاف علیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی کہ دو اسما اکٹھے ہوں گے، پہلے اسم کو مضاف کہیں گے اور دوسرے اسم کو ہم مضاف علیہ کہیں گے، اور دوسرا اسم جو ہے وہ ہمیشہ یعنی کہ مضاف علیہ ہمیشہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی اسم کی حالت جر میں ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ تھی کہ مرکب جاری بن رہا ہو، اور دوسری وجہ کیا تھی کہ مرکب اضافی میں مضاف علیہ کی جگہ پر آ رہا ہو، یعنی کہ یہاں پر جار حرف جر آ جائے اور آگے آنے والا اسم مجرور ہوگا، اور مرکب اضافی میں کیا ہوگا کہ مضاف کے بعد اگلا آنے والا اسم مجرور ہوگا، یعنی کہ کسی بھی اسم کے حالت جر میں ہونے کی دو وجوہات، اور ان میں سے ایک ہے حرف جر کا آ جانا اور اس کے بعد اسم مجرور آئے گا، اور دوسرا ہے مضاف علیہ کی کنسٹرکشن میں مضاف علیہ کا مجرور ہونا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ ضمائر کے چارٹ پڑھے تھے، ضمائر دو طرح کے ہم نے پڑھے تھے، ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ۔ یہاں جو میں لکھ کر لائی ہوں وہ ہے ضمیر متصلہ، یعنی کہ جڑ کر آنے والے۔ ٹھیک ہے، ضمائر منفصلہ ہم نے آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ ضمائر منفصلہ جو ہوتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی کہ مرفوع ہوتے ہیں، اور ضمائر متصلہ جو جڑ کر آتے ہیں وہ منصوب اور مجرور دو شکلوں میں ہم نے اس کو دیکھا تھا۔ اب آج ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ ابھی یہاں پر یہ منصوب ہے یا مجرور ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ضمائر تو منصوب یا مجرور دونوں حالتوں میں آ سکتے ہیں، لیکن اب آج ہم دیکھیں گے کہ جس اسم کے ساتھ یہ آ رہے ہیں تو وہاں پر یہ اپنی حالت منصوب رکھیں گے یا مجرور رکھیں گے، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا، ضمائر جو ہوتے ہیں یہ جڑ کر آ سکتے ہیں، یہ ضمائر متصلہ صرف یہ والے۔ ٹھیک ہے، منفصلہ تو ہوتے ہی الگ ہیں، وہ تو سیپریٹ ہی آتے ہیں، وہ کسی اسم کے ساتھ فعل کے ساتھ حرف کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے بلکہ وہ علیحدہ سے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ضمائر متصلہ جب جڑ کر آتے ہیں، یہ متصل ہو کر آتے ہیں، تو پھر یہ اسم کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، یہ فعل کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، یہ حرف کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں۔ تو حرف کے ساتھ ہم نے لاسٹ لیکچر میں جب ہم نے مرکب جاری کیا تھا تو حرف جارہ کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ضمائر بھی آ جاتے ہیں نا، تو ہم نے اس میں دیکھ لیا تھا کہ حرف جارہ کے بعد اگر ضمائر آ جائیں تو حرف کے ساتھ جڑ کر آ گئے تھے، اور حرف جارہ کے بعد obviously ہم نے پڑھا تھا کہ آگے آنے والا اسم مجرور ہوگا، چاہے وہ ضمیر ہو یا ظاہر ہو،
वो मजरूरी कहलाएगा। यानी कि ये मबनी होते हैं ज़मायर वैसे तो, लेकिन जब हरफ जारा के बाद आएंगे तो इनको हम महल्लन मजरूर कहेंगे। और इसी तरह से ये जो इसम के बाद जब आएंगे तो आज हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे। और फेल के बाद जो है वो हम फर्दर ऑन जब आगे पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो इसम के साथ जब ये जमायर आएंगे, जमायर जब इसम के साथ जुड़कर आएंगे तो हमेशा मजरूर होंगे और मुदाफ अलैह कहलाएंगे, ठीक है। जब भी ये इसम के साथ जुड़कर आएंगे तो हमेशा मजरूर होंगे और मुदाफ अलैह कहलाएंगे। तो हरफे जो जर है, जी, जमायर जब हरफे जर के साथ जुड़कर आएंगे तो हमेशा मजरूर होंगे, ठीक है। जो हरफ के साथ कब कैसे मजरूर पड़े कि जब हरफे जर आ जाता है और उसके बाद आगे जमीर आ जाएगी तो वो मजरूर कहलाएंगे। अब आज हम देखें कि जब ये इसम के साथ जुड़कर आएंगे तब ये मजरूर कहलाएंगे और ये किस हालत में होंगे। इंशाल्लाह अगली स्लाइड में चलते हैं फिर हम देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर इससे भी अगली स्लाइड में जाएंगे, थोड़ा सा पहले मुदाफ के बारे में देख लेते हैं कि मुदाफ जो है वो बगैर तनवीन के और बगैर अलिफ-लाम के आएगा। ये कभी भी तनवीन और अलिफ-लाम के साथ नहीं आएगा। और मुदाफ अलैह हमेशा मजरूर होगा। यहाँ पर ये मिसाल लिखी हुई है, किताबुल वलदी, लड़के की किताब, लड़के की किताब। अब यहाँ पर अगर मुझे कहना हो उसकी किताब, यानी कि अब मैंने लड़का वर्ड नहीं लाना, अब मैंने कहना है उसकी किताब, ठीक है। या मैं कहूँ कि अहमद एक लड़का है और उसकी ये किताब है, तो फिर हमें क्या करना होगा कि किताबु तो रहेगा, किताब तो है ही, ठीक है। अब ये वलदी की जगह पर आप जमीर अटैच कर देंगे। अब लड़का वाहिद है, यानी कि एक बंदे की बात हो रही है कि एक पर्सन की किताब है, तो हम यहाँ पर वाहिद मुजक्कर की जमीर लगा देंगे, यानी कि किताबुहु। क्या बन जाएगा यहाँ पर? किताबुहु, उसकी किताब, किताबुहु, उसकी किताब। और किताबुल वलदी, लड़के की किताब, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे मिसाल है बैतुहु, बैत कहते हैं घर को, तो बैतुहु जैसे हमने पढ़ा था कि मुदाफ जो है वो मरफू, मंसूब, मजरूर तीनों हालतों में हो सकता है, जबकि मुजाफ अलैह जो है वो हमेशा मजरूर होगा। यहाँ बज़ाहिर हालत में मुदाफ अलैह की मजरूर नजर नहीं आ रही क्योंकि ज़मायर जो होते हैं ये मबनी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको हम कहेंगे क्या कि ये मजरूर है, ठीक है। हुम हु जो है ये है महल्लन मजरूर। बैतुहु, बैतु घर, हु उसका, ठीक है। तो अब जब मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन में इसका तर्जुमा करेंगे तो पहले हु का तर्जुमा करेंगे, पहले मुदाफ अलैह का तर्जुमा आएगा, बाद में मुदाफ का तर्जुमा आएगा। तो हु का तर्जुमा करें उसका, और बैतु घर, उसका घर, ठीक है। उसका इधर आ जाएगा और बैतु का तर्जुमा इधर आ जाएगा, उसका घर। और बेईता हु, बेईता मुदाफ है, हु जो है जमीर अटैच है और यहाँ पे मुदाफ जो है वो मंसूब है। और ये क्या कहेंगे? बेईता हु, उसका घर। अच्छा, उस दिन हमने ये चीज तो देख ली थी कि मुदाफ जो है वो मरफू, मजरूर, मंसूब तीनों हालतों में हो सकते हैं। और हमने ये भी देख लिया था कि मुदाफ अलैह की बेस पर मुदाफ अलैह अगर मारिफा होगा तो हम कहेंगे कि ये इसम भी मारिफा है, और मुदाफ अलैह अगर नकीरा होगा तो हम कहेंगे कि मुदाफ भी नकीरा है, ठीक है। ये चीज हमने उस दिन देख ली थी। लेकिन आज एक और चीज जो हमने देखनी है वो ये है कि मुदाफ अगर मुदाफ के ऊपर जो भी हरकत होगी उसके हिसाब से इराब का फैसला किया जाता है, ठीक है। मुदाफ के ऊपर जो भी हरकत होगी उसके हिसाब से इसके इराब का फैसला किया जाता है। अब यहाँ पर मुदाफ जो है वो मरफू है, तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे कि ये मरफू इसम है, ठीक है। बैतुहू ये क्या है? ये मरफू है, इसकी हालत क्या है? मरफू है। और बैता हु अगर ये मंसूब मुदाफ आ रहा है तो इसको कहेंगे ये मंसूब है। और अगर बैती इनके मुदाफ मजरूर आ रहा है तो हम कहेंगे ये मजरूर है महल्लन, ठीक है। तो बैतुहू, बैताहू और बैती ही आएगा, ठीक है। बैती हूँ होना चाहिए था ना बेसिकली, लेकिन हमको याद है कि जब हमने मुरक्कबे जारी पढ़ा तो हमने एक कायदा पढ़ा था कि जब जमायर के बाद हु, हुमा, हुम और हुन्ना से पीछे हरफ या हो तो फिर पिछला हरफ जेर के साथ हो, या फिर पिछला हरफ जेर के साथ हो, तो ये चार जमायर जेर से शुरू होंगे, यानी कि ये पेश नहीं लेंगे बल्कि ये जेर के साथ शुरू हो जाएंगे। इन एक्चुअल में ये ब्लैक वाले जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले थे हु, हुमा, हुम। और जब ये इन जमायर के पीछे या तो हरफ या आ जाए या इन जमायर से पीछे या हरफ जेर अलामत सॉरी जो है वो जेर की आ जाए तो ये हु की बजाय ही हो जाएगा,
हुमा की बजाय हिमा हो जाएगा, हुम की बजाय हिम हो जाएगा। वाहिद मोनस का सीगा हा ही रहेगा, वो एज इट इज, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और जो मुसन्ना के सीगे है ये हिमा हो जाएगा, और जमा मोनस के सीगों में भी ये हिन्ना हो जाएगा। यानी कि ये 5 सीगे हैं जिनमें तब्दीली वाक़या होगी, बाकी किसी चीज में तब्दीली वाक़या नहीं होगी। और ये तब्दीली कब होगी? जब इन जमायर से पीछे हरफ या आ जाए, या फिर पिछले हरफ पर जेर की हरकत हो, तो ये हु की बजाय ही हो जाएंगे, हुमा की बजाय हिमा हो जाएंगे, हुम की बजाय हिम हो जाएंगे। और इसी तरह से फिर ये मुसन्ना मोनस के लिए भी हिमा हो जाएगा, और जमा मोनस के लिए भी हिन्ना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें बैती अब मुदाफ मजरूर था, और अब हमने कहा ना कि अगर जमायर से पीछे हरफ के ऊपर जेर हो तो वो जेर वाले हो जाएंगे, जमायर जो है वो जेर वाले हो जाएंगे, ये 5 सेगों में। तो यहाँ पर देखें ये जेर आ रही है पीछे, तो ये क्या हो जाएगा, हु की बजाय इसको हम ही लिखेंगे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, बैती ही, उसका घर। तर्जुमा तीनों का सेम है, लेकिन इसका मरफू, इसका मंसूब, इसका मजरूर। आगे देखें कि मुदाफ की हरकत से आपने पहचाना है कि इसका इराब किया, ये मुदाफ मरफू, ये मुदाफ मंसूब, और ये मुदाफ मजरूर। तो ये मजरूर इसम, ये मंसूब, और ये मरफू। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि या मुतकल्लिम अपने से पीछे लफ्ज पर जेर ले आता है, अगरचे इस लफ्ज के इराबी हालत कुछ भी हो, यानी कि रफा हो, नसब हो, या जर हो, और वो खुद साकिन ही रहता है। ठीक है, वो उसको ज्यादा पसंद है कि वो साकिन रहे, और वो अपने ऊपर तो बिल्कुल भी कतन जो है वो उसका पेश का आना और जबर का आना थोड़ा सा उसको भारी लगता है, और पेश का आना तो उसको सादा ही भारी लगता है। ठीक है, तो जब ये देखें यहाँ पर मुदाफ था किताबू, यानी कि मरफू हालत में था, किताबू मुदाफ जो था मरफू हालत में। तो अगर इसके साथ या मुतकल्लिम हमने अटैच करनी है, तो जैसे एज ऑन रूल हमने ये ऊपर पढ़ा कि जब भी ये या मुतकल्लिम आएगी तो अपने से पिछले हरफ पर ये जेर चाहती है, ये कभी भी अपने से पिछले हरफ पर पेश नहीं चाहती, जिसको हम तजवीद के हिसाब से या मद भी कहते हैं। तो ये क्या बन जाए, किताबी, क्या बन जाएगा, किताबी। अच्छा, यहाँ पर देखिए किताबा था मुदाफ, यानी कि मंसूब हालत थी यहाँ पर, और इसमें साथ अटैच कर दी या, तो ये जबर भी पीछे नहीं चाहती, यानी कि अपने से पीछे ये जबर भी नहीं चाहती, तो सिर्फ ये अपने पीछे जेर ही चाहती है। तो फिर हम इसको किताबा की बजाय किताबी कर देंगे, यानी कि फिर ये अगेन आ गया किताबी, मरफू हालत में भी किताबी, मंसूब हालत में भी किताबी, और मजरूर हालत में तो ये रहेगा ही किताबी। ठीक है, तीनों हालतों में ये क्या हो गया, किताबी किताबी किताबी। इसके मनफू मंसूब मजरूर होने का फैसला फिर इंशाल्लाह आगे जब हम करेंगे किसी एग्जाम्पल में, तो फिर हम इसको देखेंगे। या मुतकल्लिम से पीछे जब अलिफ हो तो या मुतकल्लिम पर जबर आ जाती है, यानी कि अलिफ जो है ये अपने से पीछे जबर चाहता है हमेशा। आपको पता होगा कि जब भी अलिफ खाली होता है तो उससे पहले आपको जबर ही मिलती है हमेशा। ठीक है, कभी भी आपको दमा या वो नहीं मिलता, कसरा नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या रूल लिखा है, या मुतकल्लिम से पीछे, यानी कि जो या मुतकल्लिम होगी वो अपने पीछे जब अलिफ हो तो या मुतकल्लिम पर जबर आ जाती है, यानी कि वो जैसे एज दिस रूल कि हमने पढ़ा कि या मुतकल्लिम अपने से पीछे हरफ पर जेर चाहती है, लेकिन आपको पता है कि अलिफ तो जेर एक्सेप्ट नहीं करता। अलिफ तो अपने पीछे कोई भी जेर एक्सेप्ट नहीं करता, ना ही वो आने देता है। अलिफ होता ही तब है जब इससे पहले जबर हो। तो ये तो रूल पक्का है ना कि ये तो बदल नहीं सकता। तो फिर या को थोड़ा सा ये तब्दीली लानी पड़ती है कि या के ऊपर फिर हम, यानी कि या अपने पीछे तो सिर्फ जेर ही चाहती है, लेकिन अगर पीछे जेर ना ला सकते हो, जैसे इस सूरत में है कि अलीफ है पीछे तो हम जेर ला ही नहीं सकते इससे पीछे, तो फिर क्या होगा कि या खुद जबर एक्सेप्ट कर लेगी, यानी कि या अपने ऊपर जबर एक्सेप्ट कर लेगी। वैसे आपने देखा था कि जब या मुतकल्लिम के सीगे आए थे, ये देखिए जब या मुतकल्लिम के सीगे आए थे तो या जो है वो ही के साथ लिखा हुआ था, यानी कसरा के साथ लिखा था, इन एक्चुअल ये कसरा के साथ होती है। लेकिन जब ये जुड़कर आती है तो ये अपने ऊपर ये जो है ना ये जबर भी एक्सेप्ट कर सकती है इस सूरत में कि पीछे आने वाला हरफ अलीफ हो तो फिर ये ऊपर अपने जबर एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये बन जाएगा माह या। इस या का मतलब होगा मेरा। ठीक है, ये मुतकल्लिम का सीगा है तो मेरा या मेरी या मेरे के हिसाब से इसको हम तर्जुमा करेंगे। तो यह देखने में माह या एक ही लफ्ज लग रहा है, लेकिन ये मुरक्कब इजाफी है। इसी तरह से हुदा या, ये भी सूरह बकरा में आपके स्टार्ट में ही है, तो आप देखें कि हमें देखने में ये एक ही लफ्ज नजर आता है, लेकिन
ये हुदा क्या है, हुदा मुदाफ है, और या जो है ये मुतकल्लिम की है, यानी कि मुदाफ अलैह की जगह पर है, तो इसका तर्जुमा होगा मेरी हिदायत। ठीक है, चले जी आगे हम आ जाते हैं। तो ये चार्ट देखें ज़मीर मुत्तसिला, तो इसका चार्ट जो है वो हम देख लेते हैं, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। बैतुहू उसका घर, बैतुहुमा उन दोनों का घर, बैतुहुम उन सब का घर, बैतुहा उस औरत का घर यानी कि उस मोनस का घर, बैतुहुमा उन दो औरतों का घर, बैतुहुन्ना उन सब औरतों का घर, बैतुका अब हाजिर की सीगी आ गई, इसका तर्जुमा आप या तुम्हारे के साथ करेंगे, तुम तुम्हारे या आपके साथ करेंगे। ठीक है, बैतुका आपका घर, बैतुकुमा आप दोनों का घर, बैतुकुम आप सबका घर। ठीक है, बैतु की आप एक मोनस का घर, यानी कि आप मोनस में खुद आप ऐड कर रही हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए कि ये फीमेल की बात हो रही है, बैतु की। ठीक है, बैतुकुमा तुम दो औरतों का घर, बैतुकुन्ना तुम सब औरतों का घर। अब यहाँ पर देखिए बैती आ गई। अब यहाँ पर देखिए ऊपर सारे जितने भी सीगे आ रहे थे मुदाफ जो था वो मरफू हालत में था, लेकिन यहाँ पर ये मरफू हालत क्यों नहीं रही, क्योंकि हमने देखा था कि जब या मुतकल्लिम आएगी तो वो पीछे अपने पेश एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि वो पीछे जेर ही चाहती है, तो उसकी पेश मुदाफ की हटाकर हम जेर लगा देंगे, ये बन जाएगा सीगा बैती। और जमा और मुसन्ना और जमा के दोनों के सीगे एक होते हैं, बैतुना यानी कि हमारा, हम दोनों का घर मुसन्ना के उसमें आ जाएगा और जमा में आ जाएगा हम हमारा घर। ठीक है, तो अच्छा इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं। कुलूबु हुम, कुलूबु मुदाफ और हुम जो है ये मुदाफ अलैहि हो गया। अब यहाँ पर देखें कि हुम जब जमीर अटैच हुई तो पीछे पेश थी, तो हमें इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ी, हमने इसको हुम ही रहने दिया। ठीक है, तो जब तर्जुमा करेंगे पहले मुदाफ अलैहि का तर्जुमा करेंगे फिर मुदाफ का करेंगे। मुदाफ अलैहि का तर्जुमा आ जाएगा उन सब के कुलूबु दिल, उन सब के दिलों। अब ये कुलूबु जमा मुकस्सर है ना, तो इसलिए दिलों लफ्ज ले आएंगे, उन सब के दिलों। अजरा कुम, अजरा मुदाफ और कुम मुदाफ अलैहि, और कुम का तर्जुमा पहले करेंगे तो आ जाएगा तुम सब का अजरा अजर, तुम सब का अजर। ठीक है, और रब्बी का, रब्बी का। ठीक है, तो रब्बी में ये देखिए रब्बी का तर्जुमा बाद में करेंगे और का तर्जुमा पहले करेंगे, यानी कि तुम्हारा रब, या इसका तर्जुमा हम करेंगे आपका रब, यानी कि हाजिर की बात हो रही है, आपका रब या तुम्हारा रब। अच्छा अब यहाँ पर देखें कि हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जब भी मुरक्कबे इजाफी आएगा तो उसमें का के की का तर्जुमा आप ऐड ऑन कर देंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि जब आप बामुहावरा तर्जुमा कर रहे होंगे तो उसमें का के की फिट नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसको पढ़ने से आपको ये बात जरूर समझ आ जाएगी इसका ताल्लुक है किसी चीज के साथ, यानी कि आपस में दोनों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है। अब ये देखें आप का रब या तुम्हारा रब, ताल्लुक तो शो कर रहा है ना, निस्बत शो कर रहा है। ठीक है, तो कभी कभी तर्जुमा इस तरह से भी आएगा का के बगैर। अच्छा यहाँ पर फिर दोबारा पीछे आते हैं, देखिए इसकी इस इसम के मरफू मंसूब और मजरूर होने का कहाँ से पता चलेगा, ये मुदाफ की हरकत से। मुदाफ अगर मरफू तो ये इसम मरफू, मुदाफ अगर मंसूब तो ये इसम मरफू, सॉरी मंसूब, और यहाँ पर मुदाफ अगर मजरूर है तो ये इसम मजरूर कहलाएगा। ठीक है, दीनहू, तो यहाँ पर देखिए मुदाफ मंसूब है तो ये मंसूब कहलाएगा, और हु आगे आने वाला जो इसे मुदाफ अलैहि है इसको तो हम कहेंगे ही हमेशा कि ये मजरूर है। ठीक है, इसके महल, महल क्या है, महलन इराब इसका क्या है कि मजरूर है, देखने में हमें पेश के साथ नजर आता है, जैसे हमें पता है कि जमायर जो है वो मबनी होते हैं, तो ये देखने में हमें पेश के साथ नजर आ रहा है, लेकिन ये मजरूर होगा, तो इसका तर्जुमा करेंगे हु का पहले और दीन का बाद में। उसका दीन इबादी। ठीक है, इबादी जो है वो अब की जमा है, इबाद, इबाद जो है वो अब की जमा है, ये मुदाफ की जगह पर आ गया, और ही जो है ये साथ ही आए मुतकल्लिम की आ गई, तो ये हो जाएगा, इसका ही का तर्जुमा पहले करेंगे मेरा। ठीक है, इबादी, अब ये मेरा बंदे तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि बंदे यहाँ पर आना है क्योंकि जमा का सीगा है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा, मेरे बंदे। ठीक है, क्या आ जाएगा, मेरे बंदे। अब यहाँ पर भी देखें का के की का कोई तर्जुमा नहीं आया, जब उर्दू में तर्जुमा हम कर रहे होंगे ना तो कभी का तर्जुमा आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन निस्बत शो करेगा, यानी कि इसका ताल्लुक एक दूसरे के साथ होगा। आमालूना। ठीक है, आमालूना, आमाल जो है वो अमल की जमा है, तो ना जो है वो अटैच जमीर है मजरूर, और यहाँ पर ये मुदाफ अलैहि बन रही है, तो इसका तर्जुमा हम पहले करेंगे हमारे आमाल। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। नफ्सी ही मुरक्कब इजाफी उसका नफ्स, बुयूतुहुम मुरक्कब इजाफी उन सब के घरों, और कौमहू उसकी कौम, आयातीना मुरक्कब इजाफी हमारी आयात, असाया
ये मुरक्कब इजाफी मेरी लाठी। अब यहाँ पर देखिए असा मुदाफ था और या जो है वो मुतकल्लिम की है। बेसिकली हमने जब ज़मायर का चार्ट याद किया तो ये या जेर के साथ थी, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं आई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि या जो है जब ये इसके साथ अटैच होकर इसम के साथ आएगी और अगर इससे पीछे हरफ अलिफ आ रहा होगा तो ये या जो है वो जेर नहीं, यानी कि या जो है वो अपने पीछे जेर चाहती है। अब इस अलिफ की वजह से ये पीछे वाला हरफ जो है वो जेर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये अलिफ आने नहीं देता पीछे अपने जेर। तो इस वजह से मजबूरन जो है वो या को ही जबर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तो इसको पढ़ेंगे असा या, यानी कि या के ऊपर जब आपको हरकत नजर आए तो आपको ये पहचानने में आसानी रहेगी कि ये मुतकल्लिम की या है, यानी कि ये अटैच जमीर है, तो ये आ जाएगी मेरी लाठी। जिक्र का तुम्हारा जिक्र या आपका जिक्र, ठीक है, तर्जुमा दोनों तरह से हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर एक आ गया अल कौमिल मुजरिमीना। अल कौमिल मुजरिमीना, अल कौमी यहाँ पर मौसूफ, क्योंकि दोनों देखिए अलिफ लाम के साथ आ रहे हैं। हमने पढ़ा था कि मुदाफ जो है वो कभी अलिफ लाम के साथ नहीं आएगा, जब भी इसम अलिफ लाम के साथ आ जाए तो आपने यही सोचना है कि फिर ये कोई और मुरक्कब बन रहा है, ठीक है, मुरक्कब इजाफी नहीं बन रहा, तो ये फिर कोई और मुरक्कब बन रहा है। तो अल कौमी मौसूफ बनेगा क्योंकि ये अलिफ लाम इसके साथ भी लगा हुआ है, इसके साथ भी अलिफ लाम लगा हुआ है, और ये हमें हालत जर में नजर आ रहा है मुजरिमीन जमा की सूरत में, और ये कौमी भी जमा की सूरत में हमें मजरूर हालत में नजर आ रहा है। कौमी क्योंकि कलेक्टिव नाउन होता है, यानी कि कौम का मतलब ही जमा होने से है, यानी कि लोगों के जमा होने से, तो इसलिए ये भी जमा के सीगे में आएगा। ठीक है, तो ये मुरक्कबे तौसीफी होगा, तो ये हो जाएगा मुजरिम कौम। जब देखिए तर्जुमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुजरिम कौम। अब इसमें कोई निस्बत शो नहीं हुई, बस ये कहा गया है कि ये मुजरिम कौम है, मुजरिम कौम। अब यहाँ पर जब हम इसको मुरक्कबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन में लाएंगे तो ये हो जाएगा काउमिल मुजरिमीना, तो नहीं हो सकता ना, काउमिल मुजरिमीना नहीं हो सकता, तो ये मुदाफ की ऊपर से हम हरकत हटा देंगे तनवीन की, और अलिफ लाम भी हटा दिया, ठीक है, तो ये बन गया काउमी। और आगे जो है वो इसम आ जाएगा मुजरिमीना, काउमिल मुजरिमीना भी आ सकता है, ये जैसे ऊपर लिखा हुआ है कौमिल मुजरिमीना भी आ सकता है, और कौमिल कौमी मुजरिमीना भी आ सकता है, ठीक है, यानी कि मुदाफ अलैहि जो है वो मारिफा भी हो सकता है और मुदाफ अलैहि नखीरा भी हो सकता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन मुदाफ जो है ये बगैर तनवीन बगैर अलिफ लाम के होना जरूरी है। तो जब मुरक्कब इजाफी में इसका तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा कि मुजरमों की कौम, मुजरमों की कौम, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जब ये नकीरा इसम आएगा, यानी कि मुदाफ अलैहि नकीरा आएगा, तो यहाँ इसके तर्जुमे में देखें एक तब्दीली आई है कि मुजरमों की कोई कौम। जब भी ये तनवीन यानी कि जो इसम हमें नकीरा इसम मिलेगा तो उसका तर्जुमा करते हुए हम ख्याल रखेंगे कि एक या कोई का मफहूम देगा, एक या कोई का मफहूम देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौमिल मुजरिमीन का तर्जुमा क्या है, मुजरिमों की कौम, ठीक है। तो कौमी मुजरिमीना, तो कुरान पाक में देखें बहुत सारी जगहों पर ये इस तरह से भी इस्तेमाल हुआ होगा, इस तरह से भी इस्तेमाल हुआ होगा, तो जब ये आएगा तो मतलब ये मुजरिमों की कौम जनरल बात हो रही है। लेकिन जब ये आएगा तो फिर क्या होगा, जब मुदाफ अलैहि जो है वो नकीरा आएगा तो तर्जुमा क्या होगा, मुजरिमों की कोई कौम, यानी कि नकीरा इसम का तर्जुमा आप कोई या एक के साथ करेंगे, इस चीज को आपने जहन में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये कुछ और एग्जांपल्स आ गए, हुर्रिमत अलैकुम, ठीक है, आप हुर्रिमत को हम छोड़ के अलैकुम पे आते, अला हरफ जर और कुम साथ में अटैच ज़मीर आ गई, अलैकुम, ठीक है। और उम्महातुकुम, ये अलैकुम का तर्जुमा करेंगे तुम सब पर, उम्महातुकुम, ठीक है, माए, उम्महातु माए, और ये मुदाफ बन जाएगी, और कुम जो है ये अटैच ज़मीर आ गई, मुदाफ अलैहि की जगह बन जाएगी, और ये तर्जुमा करेंगे तुम सबकी माए। व बनातुकुम, बना वाओ तो छोड़ दी हरफ है, ठीक है, बनातु मुदाफ हो गया और कुम मुदाफ अलैहि हो गया। कुम का तर्जुमा पहले करेंगे तो आ जाएगा तुम सबकी बेटियां, वो अखावातुकुम, ठीक है, अखावातु हमारे पास हो गया मुदाफ और कुम जो है वो मुदाफ अलैहि, और कुम का तर्जुमा पहले करेंगे तो तुम सबकी बहनें, ठीक है, अम्मातुकुम, अम्मातुकुम, तुम सबकी फुफियां, खालातुकुम, तुम सबकी खालाएं, ठीक है, बनातुल अखी, बनातु हो गया मुदाफ और अल अखी हमारे पास हो गया मुदाफ अलैहि, ठीक है। तो भाई की बेटियां, ठीक है, बनातुल उख्ती,
ये भी हमारे पास मुरक्कब बन रहा है। तो इसी तरह से आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। सूरह निसा में ये वाले इस तरह से आए हुए हैं, तो आप चाहें तो इधर से भी देख सकती हैं और यहाँ से भी इसको नोट कर सकती हैं। ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस आ गई आगे। तो वाद अल हक की, ठीक है, वाद अल हक की, तो ये हमारे पास हो गया मुरक्कबे इजाफी। मिनल हक की मुरक्कबे जारी, अजाबन अलीमन ये हमारे पास हो गया मुरक्कबे तौसीफी। और अल अजरू अल कबीर, ये अलिफ लाम वाले दोनों इसम और मजबूर हमें नजर आ रहे हैं, मुजफ्फर नजर आ रहे हैं। ये सारा हमें बता रहा है कि ये एक जैसे हैं हर चीज में। तो फिर ये मुरक्कबे तौसीफी बना दें। अजाबी, यहाँ पर देखें अजाबी, ये दो अस्मा का मजमुआ है, यानी कि अजाबी मुजाफ और जी जो है ये साथ उसकी लगी हुई या मुतकल्लिम लगी हुई है। ठीक है, तो अजाबी मेरा अजाब, मिन अजाबी ये मुरक्कबे जारी हो गया। और अजाबिन नारी ये भी मुरक्कबे, अजाबन नारी मुरक्कबे जारी, अलन नारी मुरक्कबे जारी, सॉरी अजाबन नारी जो है ये हो गया हमारे पास मुरक्कब इजाफी, और अलन नारी मुरक्कबे जारी। ठीक है, अनहु मुरक्कबे जारी, नियामतहु मुरक्कबे इजाफी, ऐमानकुम ये हमारे पास हो गया मुरक्कबे इजाफी। और मिनकुम मुरक्कबे जारी, मुल्कुस समावाती मुरक्कबे इजाफी, फिस समावाती मुरक्कबे जारी। तो इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने इनके तर्जुमे जो है वो लिखने हैं। ठीक है, ये तर्जुमे लिखकर आप मुझे इंशाल्लाह ग्रुप में भेजेंगे। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी हम मैथ के क्वेश्चन करते थे तो आपको याद होगा कि सबसे पहले जब हम ये ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन होते थे तो हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते थे और उसके बाद हम इसको मिडल वन को सॉल्व करते थे। ठीक है, तो देखिए 6 + 4 कितने हो गए 10, यानी कि सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया और उसके बाद फिर जो आंसर आया उसके अंदर हमने इसको थर्ड जो पार्ट था उसको ऐड कर दिया, तो ये 13 बन गया। तो सेम इसी तरह से हम फॉलो करेंगे कि पहले हम मुदाफ मुदाफ अलैह पहचाना। ठीक है, सबीलुल्लाही, सबीलुल्लाही। ठीक है, तो ये सबीलु हमारे पास मुदाफ हो गया और अल्लाही मजरूर इसम ये आ रहा है, तो ये मुदाफ अलैह की जगह रख लेंगे, तो ये मुरक्कबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन हो गई। तो ये मुरक्कबे इजाफी मजरूर हो गया फी हरफे जर के लिए। ठीक है, तो ये बन गया फी सबीलिल्लाही। अब ये तो मुरक्कबे इजाफी है, हमें पता चल गया। तो ये पूरा का पूरा मजरूर हो गया फी हरफे जर के लिए मोहल्लन। ठीक है, मोहल्लन हुआ है। ठीक है, मोहल्लन होने से मुराद ये है कि जो सबीलू था ना, ये देखें मुदाफ ने इस फी की वजह से जेर एक्सेप्ट की है। इस मुदाफ ने इस फी की वजह से जेर एक्सेप्ट की है। तो ये ऐसे हमने क्लास में प्रैक्टिस भी की थी, तो आप इंशाल्लाह अब करने के काबिल हैं, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और तर्जुमा करते हुए मैंने आपको क्लास में बताया था कि सबीलिल्लाही जो है ये इसका तर्जुमा पहले आएगा, यानी कि मुरक्कबे इजाफी का तर्जुमा पहले। तो इधर वाला छोटी ब्रैकेट वाला था, ये देखिए जो छोटी ब्रैकेट वाला है ना मुरक्कबे इजाफी, इसका तर्जुमा पहले करेंगे और ये बाद में इसका तर्जुमा करेंगे। तो ये आ जाएगा अल्लाह के रास्ते फी में, सबीलिल्लाही में। देखिए पहले अल्लाह का तर्जुमा होगा क्योंकि मुदाफ अलैह पहले आता है, अल्लाह फिर काके की लगाया फिर सबीली रास्ता, अल्लाह के रास्ते फी में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका तर्जुमा करेंगे। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। तो मिर रब्बी का, ठीक है, मिन हरफे जर है, रब्बी मजरूर इसम है और रब्बी का मुरक्कबे इजाफी भी बन रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम जब तर्जुमा करेंगे सबसे पहले मुरक्कबे इजाफी का तर्जुमा करेंगे और उसके बाद हम हरफे जर का तर्जुमा करेंगे। तेरे रब से, ठीक है, रहमत, रहमत रब्बिका। ठीक है, रहमत रब्बिका। अब ये रहमत क्या है, ये रहमत बगैर तनवीन के आया हुआ है, बगैर अलिफ लाम के आया हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक दो अल्फाज के मिलने से, जैसे हमने देखा ना यहाँ पर एक मुरक्कबे जारी बन रहा था और दूसरे नंबर पे ये मुरक्कबे इजाफी बन रहा था। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाला भी मुरक्कबे इजाफी हो और दूसरे वाला भी मुरक्कबे इजाफी हो, यानी कि दो मुरक्कबे इजाफी इकट्ठे भी आ सकते हैं। ठीक है, रहमता ये बगैर तनवीन के बगैर अलिफ लाम के, तो फौरन आपके ذहन में आना चाहिए कि ये मुदाफ बन सकता है। और आगे मुदाफ ले जो है वो फिर मुरक्कबे इजाफी की शक्ल में आएगा, यानी कि रब्बिका, रब्बिका ये पूरा मुरक्कबे इजाफी की शक्ल में है। तो मुरक्कबे इजाफी में ये रब्बी जो है ये बन जाएगा मुदाफ। एट द सेम टाइम ये रहमती के लिए, रहमता के लिए मुदाफ अलैह भी है। ठीक है, रब्बी जो है वो एट द सेम टाइम रहमता के लिए मुदाफ अलैह भी है और रब्बी जो है वो मुदाफ भी है और का जो है मुदाफ अलैह हो जाएगा। यानी कि ये रब्बी जो है ये एक बार में वो मुदाफ बन रहा है रहमता का और दूसरी बार में ये सॉरी एक बार में ये मुदाफ अलैह बन रहा है रहमता का
और दूसरी बार में ये मुदाफ बन रहा है का। ठीक है, दोबारा से एक बार देख लें कि रहमता बगैर तनवीन बगैर अलिफ लाम, तो आगे जो रब्बी है ये इसका मुदाफ अलैह, और रब्बी अगेन ये मुदाफ भी बन रहा है इसका मुदाफ अलैह के लिए, यानी कि दो मुरक्कबे इजाफी इकट्ठे आ गए हैं। जैसे इसमें था ना मुरक्कबे जारी आ रहा था पहले, फिर मुरक्कबे इजाफी आ रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो मुरक्कबे इजाफी एक साथ आ गए हैं। तो इसमें क्या होगा कि जब तर्जुमा करेंगे तो पहले वाले का दूसरे वाले का तर्जुमा पहले, यानी कि तेरे रब, फिर पहले वाले का तर्जुमा करेंगे, यानी कि ऑपोजिट क्रॉस में ही आपको तर्जुमा करना है। पहले ये जो दूसरा आपके पास मुरक्कब होगा ना उसका तर्जुमा पहले आएगा हमेशा, तो ये आ जाएगा तेरे रब की रहमत। इसी तरह से देखिए रसूलु रब्बीना, ये भी वही वाला बन रहा है कि मुरक्कबे रसूलु मुदाफ और रब्बी मुदाफ अलैह, और फिर दूसरे नंबर पे रब्बी जो है वो मुदाफ और ना जो है मुदाफ अलैह, यानी कि दो मुरक्कब इजाफी एक साथ आ गए। तर्जुमा करते हुए रब्बी नाम का पहले करेंगे तर्जुमा, यानी कि हमारा रब, और रसूलु का तर्जुमा बाद में आ जाएगा, हमारे रब के रसूल। ठीक है, हमारे रब के रसूल। और इसी तरह से फी कुलूबिल मुजरिमीना, तो ये फिर वही वाला आ गया मुरक्कबे जारी और फिर मुरक्कबे इजाफी, फी कुलूबी मुरक्कबे जारी और कुलूबिल मुजरिमीना मुरक्कबे इजाफी। तर्जुमा करते हुए पहले दूसरे नंबर का ही तर्जुमा करेंगे, दूसरे मुरक्कब का ही तर्जुमा करेंगे, दूसरे नंबर पे मुरक्कबे इजाफी आ रहा है तो इसका तर्जुमा करेंगे मुजरमों के दिल, और फी आ जाएगा में, मुजरमों के दिल में। ठीक है, तो उसके बाद है अला सलातिहिम, तो ये अला सलाती मुरक्कबे जारी और सलाती मुरक्कबे इजाफी। तर्जुमा करते हुए आएगा उनकी नमाज पर, सिरातु रब्बिका। ठीक है, सिरातु अब यहाँ पर बगैर तनवीन बगैर अलिफ लाम, तो ये फौरन ध्यान जाना चाहिए कि ये मुदाफ बन रहा है, और फिर रब्बी जो है वो इसका सिरातु का मुदाफ अलैह हो गया, और फिर रब्बी जो है ये मुदाफ भी बन गया और का जो है मुदाफ अलैह बन गया। तर्जुमा करते हुए दूसरे मुरक्कब का तर्जुमा पहले करेंगे, ये आ जाएगा तेरे रब या आपके रब, सिरातु रास्ता, आपके रब का रास्ता। ठीक है, और जवाबा कौमी ही, जवाबा बगैर तनवीन बगैर अलिफ लाम, तो ये मुदाफ की जगह आ रहा है, कौमी ही जो है ये मुरक्कबे इजाफी अगेन, तो जवाबा मुदाफ और कौमी मुदाफ अलैह, कौमी मुदाफ और की जो है वो मुदाफ अलैह। तो यहाँ पर इसका तर्जुमा करेंगे इसकी कौम का जवाब, रसूलु बगैर तनवीन बगैर अलिफ लाम, तो ये मुदाफ बनाएंगे, आगे आने वाला ही तो मुदाफ नहीं बनेगा, तो रब्बी जो है वो मुदाफ अलैह। ठीक है, और रब्बी जो है ये मुदाफ बनेगा अल आलमीन मुदाफ अलैह के लिए, यानी कि दो मुरक्कबे इजाफी एक साथ आ गए। तो इसको हम कैसे तर्जुमा करेंगे, आ जाएगा तमाम जहानों के रब का रसूल, ये आ जाएगा, आलमीन है ना जमा का सीगा है तो इसलिए तमाम का तर्जुमा किया, और ये अलिफ लाम जो है ये हमारे पास इस तरह से जमा का मफहूम भी देता है, लेकिन ये अल आलमीन जो है ये बता रहा है कि ये जो है वो जमा की बात हो रही है, यानी कि तमाम जहानों के रब, फिर ये मुरक्कबे इजाफी है ना, फिर काफी की आ जाएगा, तमाम जहानों के रब का रसूल। तो इस तरह से इसका हम तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर देखें एक स्लाइड, तो ये यहाँ पर देखें कि हरफ जर और मुदाफ यही हम प्रैक्टिस करके आए, ये सिर्फ बस यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि पहले हरफ जर आ जाता है तो आगे आने वाला इसम जो है वो मजरूर इसम भी होता है और एट द सेम टाइम वो मुदाफ भी बन रहा होता है। ठीक है, अगर वो मुदाफ है तो आगे आने वाला इसम जो है वो मुदाफ अलैह बनेगा इस मुदाफ के लिए। ठीक है, लेकिन आगे फिर मुदाफ अलैह आ रहा है तो फिर ये मुदाफ भी बनेगा इस मुदाफ अलैह के। इसी तरह से हम प्रैक्टिस करके आए, बस ये लिखा हुआ है, अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मिसालों से आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए बी हरफ जर है और इजनी जो है मजरूर इसम है, तो ये देखिए बी इजनी जो है वो मुरक्कबे जारी बन गया, और रब्बी ही यहाँ पर देखें रब्बी ही, अब ये इजनी जो है ये मुदाफ भी बन सकता है क्योंकि ये बगैर तनवीन बगैर अलिफ लाम की है, तो इजनी को हम मुदाफ बनाएंगे और रब्बी जो है वो मुदाफ अलैह बना देंगे। और फिर हमें पता है कि आगे जो अभी इसम के साथ जमीर अटैच होती है वो मुदाफ अलैह की जगह पर ही आती है, तो रब्बी को एट द सेम टाइम हम मुदाफ बनाएंगे इस ही के लिए, और ही जो है ये फिर मुदाफ अलैह बन जाएगा। और यहाँ पर ये ही क्यों आया है, क्योंकि जमीर जब अटैच की हमने तो यहाँ पर ये जेर थी, इससे पहले अटैच जब जमीर की तो इससे पहले हरफ पर जेर थी, तो इसलिए ये हूँ की बजाय ही हो गया। तो जब तर्जुमा करेंगे तो ये सेकंड मुरक्कब का पहले करेंगे और पहले वाले मुरक्कब का बाद में करेंगे। सेकंड मुरक्कब का तर्जुमा आ जाएगा उसके रब, फिर आ जाएगा की इजाजत से, क्योंकि ये की का तर्जुमा हमने कहाँ से निकाला, क्योंकि इजनी रब्बी जो है ना, इजनी रब्बी ये मुरक्कब इजाफी भी तो बन रहा था, बी इजनी एक मुरक्कब मुरक्कब जारी
और इज़्न रब्बी दूसरा मुरक्कब इजाफी, और रब्बी ही तीसरा मुरक्कब इजाफी, यानी कि यहाँ पर 3 मुरक्कब जमा हो गए। बी इज़्न मुरक्कब जारी और इज़्न रब्बी जो है दूसरा मुरक्कब इजाफी, और रब्बी ही ये तीसरा मुरक्कब होगा मुरक्कब इजाफी। यानी कि इस एक एग्जांपल के अंदर 3 मुरक्कब आए हैं, पहला मुरक्कब जारी था, दूसरे बाकी के दोनों जो थे वो मुरक्कब इजाफी थे। तो तर्जुमा करते हुए पहले जो है वो आखिर वाले का तर्जुमा हम पहले करेंगे। तो रब्बी ही उसके रब, ठीक है। ये जो की आया है दरमियान में, ये इस वजह से आया है कि इज़्नी रब्बी जो है ये मुरक्कब इजाफी बन रहा था, की इजाजत से, की इज़न से, ठीक है। के इज़न से या इजाजत से दोनों तर्जुमा आप कर सकती हैं। इसी तरह से ये भी जुनूबी इबादी ही सेम इसी पैटर्न पे है। बी हर पे जार है, जुनूबी मजरूर इसम है, मुरक्कब जारी बन गया, और जुनूबी बगैर तनवीन बगैर अलिफ नाम नजर आ रहा है, तो इट मीन कि ये मुदाफ भी बन सकता है। तो इसको हमने मुदाफ बनाया इबादी मुदाफ अलैह के लिए, ठीक है। और इबादी मुदाफ बना ही मुदाफ अलैह के लिए, यानी कि पहला मुरक्कब था बी जुनूबी मुरक्कब जारी, फिर जुनूबी इबादी जो था मुरक्कब इजाफी, और फिर इबादी ही मुरक्कब इजाफी, यानी कि पहला मुरक्कब जारी और बाकी के दो मुरक्कब इजाफी। और तर्जुमा करते हुए पहले इबादी ही का तर्जुमा करेंगे तो आ जाएगा उसके बंदे। अब जुनूबी इबादी की वजह से ये का के की यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। उसके बंदों के गुनाहों से, उसके बंदों के गुनाहों, यहाँ तक बात होगी। और ये जो बी है उसका तर्जुमा आ गया यहाँ पर से, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको जो है वो समझ आ गई होगी। यहाँ पर फिर थोड़ी सी कुछ मिसालें लिखी हुई हैं। फी कुलूबिहिम, ठीक है। फी हरफे जर, कुलूबी मजरूर इसम मुरक्कब जारी, और कुलूबी जो है ये हमारे पास मुदाफ बन रहा है, हिम जो है वो मुदाफ अलैह, और ये हमारे पास मुरक्कब इजाफी, यानी कि सिर्फ यहाँ पर दो मुरक्कब है। और अब ये जो हमने लास्ट एग्जांपल लास्ट स्लाइड में जो की है उसमें 3 मुरक्कब बन रहे थे, ठीक है। मिन जुनूबी, तो ये हमारे पास मुरक्कब जारी, और जुनूबी की मुरक्कब इजाफी, ठीक है। फादली हमारे पास हो गया मुदाफ, और रब्बी जो है ये हमारे पास हो गया मुरक्कब इजाफी, यानी कि फादली रब्बी मुरक्कब इजाफी और रब्बी मुरक्कब इजाफी again, यानी कि दो मुरक्कब इजाफी इस एक एग्जांपल में आ गए। तो इसी तरह से तंजीलु, फिर आ गया रब्बी, तंजीलु रब्बी, यानी कि ये मुरक्कब इजाफी, और फिर रब्बिल आलमीन फिर अगेन मुरक्कब इजाफी, दो मुरक्कब इजाफी फिर इकट्ठे आ गए। और इला हरफे जर है, सबीली मजरूर इसका मुरक्कब जारी, और रब्बी का, यानी कि अब सबीली हमारे पास जो है वो मजरूर इसम भी बना था, यानी कि मुरक्कब इजाफी भी बन रहा है इला सबीली। और उसके बाद सबीली जो है बगैर तमीज बगैर इस्लाम, तो मजाक की जगह भी रख सकते हैं, तो ये हम मुदाफ की जगह पर रखेंगे, और रब्बी मजरूर इसम रखेंगे, यानी कि मुदाफ अलैह की जगह पर। तो ये होगा सबीली रब्बी। तो ये दूसरा मुरक्कब इजाफी हो गया। पहला बना था इला सबीली मुरक्कब जारी, दूसरा मुरक्कब कौन सा बना सबीली रब्बी मुरक्कब इजाफी, और तीसरा मुरक्कब कौन सा बना रब्बी का। ये 3 मुरक्कब एक साथ इस एग्जाम्पल में जमा होंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने कुरान पाक से प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। और आज का लेक्चर जो था वो इतना ही था। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। और अगर कोई पॉइंट मिस हुआ हो या कुछ ना समझ आई हो तो आप प्रैक्टिस ग्रुप में जो है वो पूछ सकती हैं आसानी के साथ इंशाल्लाह। जी, दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।